Namaskar, hello, and a very warm welcome to this 5-day, 5-hour online live interactive series on promoting healthy lives, preventing deficiencies, diseases, and developmental delays. I am Tanvi Khurana, and this is one interesting series going on from 17th of August onwards. आज इस सीरीज़ का चौथा दिन है। हम इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हम बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड द न्यूट्रिशियस पार्ट, कैसे बच्चों को सेफ़ रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। कुछ हैबिट्स हमने डिस्कस की थी कल, बहुत सारी बातें की थी। गवर्नमेंट ऑफ इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़, स्कीम्स के बारे में बात की थी जो कि पूरी तरह फेवर करती हैं बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में। हमने यहाँ पर फर्स्ट डे पे हमने बातचीत की थी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पर भी। वी जस्ट touched upon that topic, but today we are going to discuss that in detail. So बच्चों में कोई भी हेल्दी ना रहे ऐसा कोई भी पेरेंट, ऐसा कोई भी टीचर नहीं चाहता, but there are certain deficiencies, diseases, वो delays जो हो जाते हैं, and to prevent them, to stay away from them, we have certain awareness. For this we have this program. So if you have questions, if you have queries, ऐसा कुछ है, आप एक पेरेंट हैं, आप एक टीचर हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपनी बातचीत हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, अपने कोई पॉइंट्स हैं जो शेयर करना चाहते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चाहे तो हमें फ़ोन कीजिए, नंबर है 8800440559। If you want to email us, the email ID would be dai.ie@ciet.nic.in. At this moment, you're watching us on our 2 YouTube handles, which are NCERT Official and NCERT Events. उनके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। And apart from that, you're watching us on DTH channel number 31. This is our PME Vidya ISL channel number 31. So you can watch this program, you can raise your queries, and the topic that we are going to talk about today is communicable and non-communicable diseases, prevention and healthy lifestyles. You can see the topic on your screens as well. Today is day 4, और अगर हम इसे हिंदी में बताएं आप सभी के लिए तो संचारी एवं गैर संचारी रोग, रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली। आप इससे जुड़ी बातचीत चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेज़ी में हो हमसे कर सकते हैं, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हमने आपको अभी बताए। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, 31 अगस्त 2026 को हम आप तक एक लिंक पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? हम दीक्षा कोर्स का एक लिंक होगा, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ही अपडेट होगा। कैसे होगा ये प्रोसेस मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगी। बट फॉर नाउ आपको दीक्षा में या तो रजिस्टर करना है, एनरोल करना है खुद को। ये मॉड्यूल्स जो हमने किए हैं डे 1, डे 2, डे 3 पे उन्हें देखना है, और उसी के बेसिस पे एक असेसमेंट भी आप तक पहुंचाया जाएगा। इफ़ इन केस यू स्कोर मोर देन 70%, देन यू will be given a participation certificate as well. Now, this entire program is incomplete without the sign language interpretation. So, we have 2 sign language interpreters, and they will be interpreting each and every word that we are going to discuss in this program. आपकी मदद भी होगी, और ये इंक्लूसिव भी बनाया जा रहा है ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। Let me please introduce the interpreters to all of you. हमारे साथ हैं अनुष्का एंड राहुल। A very warm welcome to both of them. आप अनुष्का को इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और वो साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर रही हैं हमारी सारी बातचीत, और थोड़ी देर में राहुल भी इन्हें ज्वाइन करेंगे। So with this, let me please introduce you to our guests for today. We have with us our first guest. She is Dr. Bani Tambar Eri. Ma'am, a very warm welcome. Namaskar. Namaskar. Ma'am is a professor from the Department of Food and Nutrition from Institute of Home Economics, IHE, University of Delhi. And we have our another guest, and he is Dr. Tushar Moghe. Sir, a very warm welcome to you. Namaskar. Namaskar. Sir हैं pediatrician from Dr. Tushar Moghe's clinic, New Delhi. I welcome you both once again in this conversation. Thank you so much.
Thank you. So let's begin understanding this topic a little more. And क्योंकि हम communicable and non-communicable दोनों ही diseases के बारे में बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि communicable diseases कौन सी होती हैं और वो स्प्रेड कैसे होती हैं, बच्चों में किस तरह की परेशानी हो सकती है communicable diseases के माध्यम से. Sir, would you like to answer that? Good morning. First of all, good morning to everyone. We see every day in our life few kids having cough or running nose. There are kids with red eyes, watery eyes, and then there might be somebody having loose motion vomiting. These are different types of communicable disease. If I have to go very specific, I can say any illness caused by a specific germ and which get transmitted from one person to another, or from animal to the person, or from some natural environmental factors, they are called communicable diseases. It has basically three factors. The first is the germ, second is the transmission, and third is the host. Broadly, we can say that there are four types of germs that we see in our usual practice. They are bacteria. The commonest type of communicable diseases by bacteria are tuberculosis, typhoid, cholera. Then viral, which are very prominent in particularly during rainy days, like measles, influenza, which is commonly called the flu, chickenpox, mumps or rubella. Then parasitic infection like malaria, chikungunya, and amoebic dysentery. And last is the fungal infection, which is usually in skin like ringworm. These are the common, or athletic foot. These are the common infections, microbes we see. Now, usually in a communicable disease, there is a chain. First, there is germ, then it usually multiplies in a host. The sick person is the host where the germs multiply, they reside normally, and then they get transmitted through either air or contact to the victim. So we have to somehow break this link somewhere. We will go into detail of this. The 5 different ways we can say by which the germs get transmitted to the host, to the patient. The most common is coughing or sneezing or talking. Even loud speaking can transmit the disease from the diseased person to a normal human being, particularly when you are in a small room like a classroom in a closed environment. The second is the direct contact. Children play with each other, they touch each other, they shake hands, and skin diseases, particularly fungal diseases, can get transmitted from one person to another. Third, even more common, is unhygienic food or unsafe water. This can cause severe diseases like typhoid, cholera. Then the fourth is vector transmission. Here, mosquito is the main culprit. It transmits most of these diseases like malaria, chikungunya, and in some part of India, Japanese encephalitis. And last, which is slightly rare, is body fluid transmission. And these are usually seen when somebody gets blood or some operation is done in which the instruments are not properly sterilized, and one may get hepatitis B or hepatitis C or even HIV. Now, we can say the commonest thing, the cough and cold, these are transmitted by air droplets. Here, the virus is usually smaller than 5 micromillimeter, and these get sort of ingested into the human body right up to the lung, which leads to the illness.
Other diseases which are transmitted by air or aerosol is measles, chickenpox. Then we have contact transmission for conjunctivitis, where usually there is some itchiness in the eye. So usually the patient is touching the eye repeatedly, and then he shakes hands or plays with the other kids and transmits the disease. Then we have waterborne diseases like diarrhea, typhoid. These are by unhygienic food habits and unsafe water. And last is direct contact, is skin scabies or ringworm. And sometimes even when kids are playing barefoot in the soil, one may get worm infestation like pinworms or hookworm. Okay, thank you so much, sir. So you mentioned conjunctivitis, which is through contact, eye contact. There's another problem called stye. So is it also communicable? Not really, unless the fluid which comes out of stye, which is a type of a boil, if somebody touches it directly, then it will communicate to other. Okay. Otherwise, but conjunctivitis is the main communicable eye problem. Okay, and if we talk about ringworm, and let's say an adult person is having it, so if he or she washes every time their clothes they are wearing, is it still a possibility that it will spread to others? As in he or she is keeping the hygiene, everything? No, if you are doing proper washing and separate washing for if the person is suffering from ringworm and that person's clothes are separately washed, okay, it won't be transmitted. Okay. But if there is collective washing and not proper washing, then it will be transmitted. Okay, and if in case it gets transmitted, what is the impact of communicable diseases, especially on children? First and the foremost thing is the child is sick. So child is going to be very irritable, then child loses, he gets sort of, he will absent from the school, he will stop playing, and whenever the child is absent from the school, there is a loss of irregular sort of connectivity with what is happening in the classroom. So he sort of, and if there is no continuity, he sort of loses interest in continuing with the school. So that is a big loss for the child and for the school also. So that is basically, and if the child is sick, then there is loss of appetite, which leads to lower body weight, anemia, other problems related to sickness. Okay, all right. So thank you so much, sir, for briefing us about the communicable diseases. And here we are talking about not just communicable, but non-communicable diseases as well. So let me ask Bani ma'am here. Ma'am, would you like to throw some light on what exactly are non-communicable diseases, and also what are the causes in India? Correct. So thank you for the question. And एक बार व्यूअर्स अगर ये फ़ोटो देखें जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगी, आप देखें लेफ़्ट में कुछ बच्चे हैं जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, दे आर अटेंटिव, दे आर हैप्पी टू बी इन द क्लासरूम. और अगर राइट साइड में आप देखें, जैसे सर ने पहले बताया कि कुछ जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, इन बच्चों को कोई डिज़ीज़ नहीं है, बीमार नहीं है, ज़ुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, बट येट दे आर लेथार्जिक, फटीग्ड, नींद आ रही है, डिसइंटरेस्टेड हैं क्लासरूम में. सो कुछ तो कहीं गड़बड़ हो रही है. सो देयर इज़ एक्चुअली एक चेंज आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं चेंजिंग फेस ऑफ चाइल्डहुड डिजीज़.
हम ये जानते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन हमारे कंट्री में है, हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक बहुत हमें हासिल भी हुआ है। बट उसके साथ साथ हमें और प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों में अनीमिया है, हमारे देश के 50 to 60% बच्चे अनीमिक हैं और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट मैलन्यूट्रिशन बहुत रैम्पेंट है। सो अंडर नरिश तो हैं, वज़न भी कम है अपनी एज के हिसाब से, और माइक्रोन्यूट्रिएंट मैलन्यूट्रिशन भी है। और साथ साथ में एक तीसरी प्रॉब्लम जो ज़्यादा नज़र आने लग गई है वो है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन मीन्स अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना और उस वजह से वेट गेन होना। सो ये अगर आप क्लासरूम में भी देखें, टीचर को अपनी क्लास में ही ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन नज़र आ जाएंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हैं, सर ने बताया कि कम्युनिकेबल डिजीज़ वो है जो एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो मुझसे और आपसे ट्रांसमिट नहीं होगी। से अगर मुझे कंजक्टिवाइटिस है और मैंने अपनी आँख में हाथ लगाया है और मैं आपसे हाथ मिला लेती हूँ तो हो सकता है आपको रिस्क बढ़ जाएगा आई डिज़ीज़ होने का। बट अगर मुझे ब्लड प्रेशर है और मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। सो यही डिफरेंस है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, एस्मा और कैंसर जैसी बीमारियों को हम कहते हैं। कुछ इसमें कंजेनिटल भी होती हैं, जैसे बाय बर्थ हम कुछ डिफेक्ट्स के बारे में बोलते हैं, बट ज़्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम से होती हैं। ये कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं, आप इनके डिटेल्स में अगर ना जाएं, बट फिर भी अगर हम देखें सो हमारे देश के जो बच्चे हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। सो परसेंटेज के फॉर्म में अगर आप देखें तो ये इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं लगती, बट अगर इनको हम नंबर्स में ट्रांसलेट करें तो ये लाखों करोड़ों में बच्चे आ जाते हैं और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ एक और नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ का मैं मेंशन करना ज़रूर चाहूँगी, वो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। एंड डेटा ये कहता है कि 7 में से 1 इंडिविजुअल इंडिया में मेंटल हेल्थ डिजीज़ से पीड़ित है और इसमें बच्चे और एडोलेसेंट्स भी शामिल हैं। जो 2 मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं वो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी। डिप्रेशन मतलब एक फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस, मतलब किसी काम में मन नहीं लगना, और एक जनरलाइज एंग्जाइटी जो नॉर्मल होती है वो तो ठीक है, बट उसके अलावा ज़्यादा एंग्शियस रहना किसी चीज़ के बारे में। सो ये प्रॉब्लम भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब आपने पूछा इसके कारण क्या हैं, इसके कई कारण हैं और कोई एक कारण इस बीमारी, इस टाइप की बीमारी को रिज़ल्ट नहीं करता। इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स हम चेंज नहीं कर सकते, उनको हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स पास डाउन फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपके जीन्स में प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, एक जेनेटिक डिफेक्ट है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, ये हमारे हाथ में हैं और इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। ये डाइटरी और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं और ये जो डाइटरी लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में देना चाहूँगी। सबसे पहले है फॉल्टी डाइटरी पैटर्न्स। अब अगर हम देखें, हम अपनी ना पुरानी ट्रेडिशनल डाइट से थोड़ा दूर भाग रहे हैं। हम एक वेस्टर्न टाइप डाइटरी इंटेक को फॉलो कर रहे हैं। ये वेस्टर्न टाइप डाइटरी इंटेक क्या है? बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स खा रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड मतलब वो फूड जो हम एक पैकेट खोल के खाते हैं, वो प्रोसेस्ड फूड है। और अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स तो बिल्कुल फैक्ट्री में ही बनते हैं। इनमें ज़्यादा चीनी है, इनमें ज़्यादा नमक है, द टाइप ऑफ फैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग इन दैम। शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं हमारे बच्चे और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा, ब्रेड, नूडल्स एक्सेट्रा वो सब खा रहे हैं। और जो नहीं खा रहे वो हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो फ्रेश फूड्स जिनको हम कहते हैं, जिनमें फ़ाइबर होता है, अनाज, दालें, ओट्स हमारी डाइट से बिल्कुल वापस चले गए हैं, मिलेट्स हमारी डाइट में नहीं हैं, नट्स एंड ऑयल सीड्स नहीं हैं और फाइबर बहुत कम हो गया है। पानी की जगह हम सॉफ्ट ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। बच्चों का बहुत लंबा सिटिंग डे होता है, घर आकर वो होमवर्क कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब वो फ्री हो जाते हैं तब वो कोई आउटडोर गेम नहीं खेलते, वो स्क्रीन टाइम अपना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, कुछ रील्स देख रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे हैं। सो मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज बहुत कम हो रही है बच्चों की। इसके अलावा पुअर स्लीप एंड स्ट्रेस इज़ अनदर फैक्टर।
इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि पोस्ट कोविड हम सबकी लाइफस्टाइल थोड़ी बिगड़ सी गई है और हम सब लोग लेट सोते हैं, बच्चे भी लेट सोने लग गए हैं। एकेडमिक प्रेशर कह सकते हैं, लोगों को पढ़ाई करनी है, बच्चे कह रहे हैं हमने रात को बैठ के पढ़ाई करनी होती है, उस टाइम डिस्टर्बेंस नहीं होती। बट करेक्ट स्लीप इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी का सदियों से एक बॉडी क्लॉक है, हम उस बॉडी क्लॉक के हिसाब से नहीं सोते। कुछ बच्चे कहते हैं हम लोग 12 बजे सोते हैं, 8 बजे उठ जाएंगे, 8 घंटे पूरे हो गए, बट ऐसा नहीं है। हमें राइट टाइम पे सोना है, जिसको हम एक सर्केडियन रिदम कहते हैं। हमारी बॉडी की क्लॉक जो है हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। अगर हम रात भर जाग रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि रात को भूख लगी और उस टाइम खाना तो है नहीं, तो जो सामने नज़र आया खाना वो प्रोसेस फूड ही होता है। सो बिस्किट खोला, नमकीन खोला, चिप्स खा लिए। दिस इज़ ऑल्सो रिजल्टिंग इन समथिंग कॉल्ड नाइट ईटिंग सिंड्रोम। स्ट्रेस की वजह से कुछ बच्चे इमोशनल ईटिंग भी करते हैं, जैसे कि कुछ कंफर्ट फूड्स होते हैं। मोस्टली ये कंफर्ट फूड्स हाई एनर्जी फूड्स ही होते हैं जो कि शुगरी होते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। सो हो क्या रहा है? सो अगर जब हम ये चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी इनटेक ज़्यादा हो रही है, हमारा एक्सपेंडिचर कम है, क्योंकि हम बैठे हैं, हम अपनी एनर्जी को यूज़ ही नहीं कर पा रहे। सो इट इज़ रिजल्टिंग इन चाइल्डहुड ओवरवेट एंड ओबेसिटी। और ये ओवरवेट एंड ओबेसिटी की वजह से जो एडिपोज टिश्यू है, जिसको हम फैट टिश्यू भी कहते हैं, वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि ये इसमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की इन्फ्लेमेशन बॉडी में आनी शुरू हो जाती है। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई वी सी सो मेनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ डिजीज़। Okay, so ma'am, can we say that non-communicable diseases are equally harmful as communicable diseases for children? Yes, definitely, because हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रॉबली हम इम्पैक्ट अभी नहीं देखते। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ हैं, इनको प्रॉपरली नज़र आने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और इसका पूरी लाइफ के हेल्थ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। Okay. Here in one of the slides you mentioned, मैम, कि हम क्या नहीं ले रखे हैं। उसमें आपने हमें मिलेट्स दिखाए, वेजिटेबल्स दिखाए, और water was one of the pictures that you showed. So I would like to confirm from you, how much water should one drink in a day, and is it the same for everyone? चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हैं, सबके लिए क्या वो क्वांटिटी सेम होती है? सो यूजुअली इट कम्स टू 1 से 1.5 लीटर बच्चों के लिए, 2 लीटर अडल्ट्स के लिए। बट द पॉइंट इज़ हाइड्रेशन थ्रू वाटर एंड अदर न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो कोला ड्रिंक्स पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, जो कि बिल्कुल हार्मफुल हैं। सो करेक्ट हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. Would you like to tell us कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होता है इन डिटेल? सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे सर ने बताया, कम्युनिकेबल डिजीज़ का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। से अगर फिज़िकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इवन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से बच्चों को कुछ मेडिकेशंस लेनी पड़ सकती हैं, हॉस्पिटल विजिट्स हो सकते हैं, बीमारी ज़्यादा होती है, अटेंटिवनेस कम होती है, उस वजह से फ़िज़िकल ग्रोथ भी हैम्पर हो सकती है। इसके अलावा देयर इज़ लॉट ऑफ स्टिग्मा अटैच, स्पेशली वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर हम एडोलेसेंस से अगर हम किसी कन्वर्सेशन में बात करें तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर वेट, how they look. So if there is slight overweight or obesity, so it may result in certain stigma, anxiety. तो mental health issues का it can start because of these problems as well. The academic performance is impacted. ये बच्चे concentrate नहीं कर पाते हैं. There is increased absenteeism. Loss of learning तो है ही है, and the most important thing about NCDs is the future health. अगर हम इसे अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ओके, आई रियली होप हमारे जो व्यूअर्स हैं आपके पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे और इन्हें प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, वुड यू लाइक टू टेल अस कि अगर कॉमन जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, उन्हें प्रिवेंट
किया जा सके तो कैसे कर सकते हैं, और अगर हम एज ए सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स उनकी बात करें तो व्हाट रोल कैन दे प्ले, हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट, सर बताना चाहेंगे? सबसे अच्छी बात यह है कि communicable disease can be prevented totally. And we have two excellent example. Long back we have totally eradicated smallpox from the world by doing some good scientific measures, and recently for India I can say we have 0 case of polio. These two are very dangerous communicable diseases which have been taken care of. And the best shield for all this is immunization, which the government of India is providing universally to all the kids in all the states of India. On the screen you can see there is a immunization schedule which is seen where we are covering diseases like tuberculosis, hepatitis B, rotavirus, diarrhea, then MR, that is mumps and rubella, Japanese encephalitis, and you have to give these injection at different time, and sometimes one has to give booster doses. One dose is not enough for body to get all the immunity against the disease. So booster doses as recommended is very important, and these booster doses continue even beyond the initial years of the child. Well, even at 1.5 years, even school going children require booster doses. So, but this is the most important and single most reason why the communicable disease burden of country has gone down. Actually, when India got independence, the main cause of mortality was communicable diseases, virtually 60% and above. And now because of better sanitation and immunization, the burden has come down below 40%. So immunization remains the backbone of prevention of communicable disease. Then the second step is improving the personal hygiene of the child. So for this there is a big role of parents, that they teach the child in the growing stage that always wash the hand properly before eating any food. Wash the hand after using toilet, and always wash your feet and hand when you go out and play and come back home. The fourth thing is cover your face whenever one is coughing or sneezing. And even if somebody is serving the food to a guest or to the siblings at home, it is better to wash the hand, wash the utensils in which the food is being served. I can say there are 6 steps, the proper steps to wash the hand. First is you wet the hand properly, then apply the soap, particularly clean the webs of the hand between the fingers. Again wash it and then dry your hand. Always cut your fingernails so that no dirt is left in the nails. The second important thing is regarding waterborne diseases. It is very important to have safe drinking water. So, and the best way to get the safe drinking water is to boil the water. But many times it is not possible to boil the water in big quantity. So if there is a household of 5 or 6 person, it is not possible to have full boiled water for everyone. So the other ways are use a filter, as it is commonly done nowadays in virtually every home. Or if it is for a community, you can use chlorine tablets to clean the water. Particularly this can be also used in school water tanks, and if there is some place where the house is using a stored
water tank, you can drop a tablet of chlorine to get the water properly cleaned. Now, third factor is the sanitation, particularly in environment of school. Providing clean toilets to children is a must. Our Prime Minister has given special emphasis on this, and particularly for the female child. Second is the proper cleaning of the classroom, the waste disposal, and having the classroom clean. The fourth is the classroom should be properly ventilated. There should be good flow of air from across the windows or door, so that even if there is a child who is coughing, it doesn't get the bacteria or virus doesn't get trapped into a small room. And the last factor that a school can do is to improve the general health of the child so that their immunity is good. For that, midday meals, the portion program is a very good help so that they get proper balanced diet. Okay. Thank you. Thank you so much, sir, for letting us know what all can parents and teachers easily do and can prevent communicable diseases. But, sir, we have a lot of information, and there is some half-baked information as well with the parents and teachers. So, uske regarding, there are certain statements which I'll ask you. So, let me know whether they are, it's a fact or is it a myth. Okay, so some teachers or parents say that one dose is enough. Would you like to tell us that is it a fact or a myth? I just mentioned that there are certain diseases which require more than one dose to get proper immunity level developed in the body. And it has been scientifically proved that if you give less than that scientifically advised doses, the immunity level will drop. And that is why we have boosters even at 5 years when the child is in the school, or at even 10 years. So proper immunization schedule should be followed. So we can say this is not true. This is not true. Okay, and then some parents say that their child is active, they are healthy, he doesn't have any problems, and he or she is just have a cough or sneeze here or there a day or two in a couple of months, not more than that. So they do not need the vaccines. Is it true or not? This is also not true, because every child requires vaccination. Usually when the vaccine is given, child is normal, and this is the usual anxiety of parents, that my child is normal, why should I give vaccine? Actually, these vaccines are basically to prevent any disease which can be very, very harmful. If somebody gets polio, the life of the child is destroyed for his whole life. It is so dangerous. And if you give 2 or 3 drops of polio vaccine, it is nothing. And same is with other vaccines like DPT. They are preventing some deadly diseases like tetanus, which can really do harm to the child. So giving vaccine is the best and the, I think, strongest way we can prevent these communicable diseases. Okay, and there are vaccines for almost a lot of diseases, right? And there are some parents who are not aware of the importance of vaccines. So they say that if I'll get my child vaccinated, then he or she will get sick. Is it true? Does it happen in some cases? Yes. In some cases, when the vaccine is given, particularly DPT vaccine, the body reacts to the vaccine and there might be fever for first 24 hours. But it's a very temporary thing, a very temporary discomfort. And it is nothing in compared to the benefits that the child is going to get from the vaccine. So this should not be the cause not to give vaccine to the baby.
Okay, so for an infant, there is a vaccine. I can't recall the name, but the doctor asks. This is a painful. There are two options for it. One is a painful, and one is without pain. So, which one would you like to go for? And most of the parents say without the See, pain. This new vaccine which has come without the pain is a very new development. Okay. But the research has shown that giving the one which gives slight pain and fever gives you better immunity than the one which is without pain. It is the one without pain is costly also, but the benefit is more with the older one which gives fever and a bit of pain. So you're recommending the painful one. Yeah. Okay. The statistics says. Okay, but generally the parents are not sure about it and they go for without pain. But the medical literature shows that the immunogenicity is better with the one which gives you pain. Okay, all right. So to all the parents and teachers, if you have newborns nearby, sir, please take sir's recommendation. Moving further in our conversation, let's now move to non-communicable diseases once again. And I would like to ask ma'am here, ma'am, are there any strategies or certain points that you would like to share regarding non-communicable diseases, that how can one prevent them in children especially and promote lifelong health, not just temporary today's health but lifelong healthy life, and what can schools do to support this prevention? Yeah, that's right. So nutrition is a very important preventive tool. So when we come to solutions to the problem of non-communicable diseases, I've listed down 10 smart strategies. 10 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं. Nonetheless, ये जो adolescence और childhood की जो window हमें मिलती है, it's a very important window. और अगर हम अपनी strategies को इस time पे focus करें तो हम future health secure कर सकते हैं अपने बच्चों की. सर ने अपनी लास्ट बात जो बोली वो बैलेंस डाइट के बारे में बोली और मेरी कॉन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट होती है. व्हेन वी से प्लीज़ हैव अ बैलेंस डाइट, ये एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट लगती है और समटाइम्स इट सीम्स लाइक अ वेरी बोरिंग स्टेटमेंट कि ऑफ कोर्स बैलेंस डाइट खा लेंगे, बट इसको खाना समटाइम्स मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है. पहले मैंने बताया कि हम अपने ट्रेडिशनल डाइट से थोड़ा दूर जा रहे हैं. जो हमारी ट्रेडिशनल थाली होती थी, अगर आप वो थाली याद करें तो उसमें सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल, थोड़ा सैलड होता था, दही होता था या छाछ पीते थे, उसके बाद एक फल खा लेते थे. तो यही एक बैलेंस डाइट है. आपके स्क्रीन पे जो फ़ोटोग्राफ आ रही है वो हमारे जो NIN ICMR जो नेशनल बॉडी है उन्होंने एक सैम्पल प्लेट दिखाई है. एंड इसमें अगर हम देखें तो अबाउट 50% ऑफ द थाली, दैट मीन्स पूरे दिन में हमें 400 से 500 मिलीग्राम फ्रेश फूड्स, जिसको हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहते हैं, वो खाना चाहिए. अगर हम अपने बच्चों से पूछें तो वो कहते हैं हमें सब्ज़ी पसंद ही नहीं है, हम खाते ही नहीं हैं, दाल पसंद नहीं है. क्या खाते हैं हम? कुछ मीठा खा लेते हैं, दूध भी हमें अच्छा नहीं लगता. सो वी आर जस्ट moving away from these traditional diets and coming back to our traditional diet, having a balanced diet is very very important. I mean sometimes mothers बोलती हैं कि नहीं इनको तो बर्गर और पिज़्ज़ा ही पसंद है. So why not? It's okay. अगर आपके बर्गर की पैटी अच्छी बनी हुई है, उसमें राजमा है या सोयाबीन है, so why not? ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ आलू ही हो. सो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. और ये जो बैलेंस डाइट है हमें फ़िज़िकली फ़िट नहीं रखेगी, इसको हम मेंटली भी, हम इसको अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकेंगे. इफ़ यू लुक एट, आई मीन अगर ले मैन में बोलें तो ब्रेन इज़ लाइक अ केमिकल फैक्ट्री. उसमें से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमिटर्स भी कहते हैं. इन सब के लिए भी हमें अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है. अगर हमारा रॉ मटेरियल ही ठीक नहीं है तो ऑफ कोर्स हमारे न्यूरोट्रांसमिटर्स और ये जो ब्रेन के केमिकल्स हैं जो हमें खुश रखते हैं, हैप्पी रखते हैं, फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन, इट कीप्स अस हैप्पी, वो रिलीज़ नहीं होगा, कम रिलीज़ होगा और हम मेंटली भी फिट नहीं रहेंगे. द सेकेंड थिंग इज़ हमें अपनी डाइट को डाइवर्स करना है. डाइवर्स मतलब अगर मुझे भूख लगी और मैंने रोटी खाई शक्कर के साथ, ऑफ कोर्स मेरा पेट भर गया, मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, बट वो बैलेंस नहीं है.
सो मुझे 5 फूड ग्रुप्स, जिन्हें हम मेनली 5 फूड ग्रुप्स में से हमें पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाना बहुत ज़रूरी है। कौन से हैं ये फूड ग्रुप्स? अनाज, दालें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स एंड एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ऑफ कोर्स ऑयल ज़रूरी है राइट प्रोपोर्शन में, एंड थोड़ी बहुत चीनी खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। बट ऑयल की बात अगर करें तो फ्राइड फूड और फैटी फूड को हमें अवॉइड करना है। अगर बच्चा कैंटीन में जा रहा है और रोज़ ब्रेड पकौड़ा खा रहा है, रोज़ समोसा खा रहा है, तो ये डेफिनेटली हेल्दी नहीं है। कभी मन करता है खाने का फ्राइड तो ऑफ कोर्स खाइए, शौक से खाइए। बट अगर आप देखें किसी हलवाई की कढ़ाई में तो वो काले रंग का तेल होता है। ये वाला जो तेल है, क्योंकि ये बार बार इसमें फ्राइंग हो रही है, ये तेल खाने को अनहेल्दी बना देता है। तो वही फूड जो फ्राइड होके ठीक हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, वही ख़राब हो जाता है। इसमें ट्रांस फैट, एक टाइप ऑफ फैट है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। सो ये, और ट्रांस फैट मैं ये भी बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि ट्रांस फैट जो है वो घर पे भी जनरेट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कढ़ाई लें और उसमें फ्राइंग करें और वही ऑयल हम दोबारा यूज़ करते रहे रीफ्राइंग के लिए, तो उससे भी ट्रांस फैट जनरेट होता है। सो आई ऑलवेज़ एडवाइज़ कि अगर छोटी कढ़ाई ले लें वो बेटर रहेगा, उसमें कम से कम तेल में फ्राइंग करें। कुछ तेल जो बच गया है उससे नेक्स्ट डे सब्ज़ी बना लें, तड़का लगा लें, बट उसको दोबारा फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं करें, बिकॉज़ हाई हीट पे जब भी धुआं निकलता है तेल में से तो वो ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ती रहती है, और ये टाइप ऑफ फैट हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल है और हार्ट डिजीज़ को रिस्क दे सकता है। शुगर की क्रेविंग जो है वो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड शुगर एक्चुअली इज़ अ सिंथेटिक फूड। हमें शुगर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि जो नेचुरल फूड्स हैं, जैसे मिल्क में शुगर है, फ्रूट्स में शुगर है, उससे काफ़ी शुगर आ जाती है। सो ये शुगर इज़ इनफ, और हम रियलाइज़ भी नहीं करते हमारे डाइट में कहाँ कहाँ से शुगर आती है। हम जो एक सोडा कैन पीते हैं, एक सॉफ्ट ड्रिंक का एक बॉटल पी लेते हैं, उसमें 8 से 10 चम्मच चीनी होती है। मैंने पहले बताया कि बच्चे एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ चीनी है और कैफ़ीन है, और इससे थोड़ी देर तो एनर्जी मिलती है, बट उसके बाद एक फ्लैट आ जाता है जो कि बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। तो कंट्रोल द शुगर क्रेविंग। एंड ऑल्सो वेरी ब्रीफली आई वुड लाइक टू से कि बिकॉज शुगर से हमें प्लेजर मिलता है, हमारा मन करता है मीठा खाने का, और हम कभी कभी खाते भी हैं, पर वो जो प्लेजर है उसको डिराइव करने के लिए धीरे धीरे हमें ज़्यादा चीनी चाहिए होती है। सो दिस इज़ अ क्लासिक केस ऑफ एडिक्शन। ऐसे नहीं बोलते कि शुगर इज़ द न्यू कोकेन, बिकॉज यू हैव टू ईट मोर शुगर टू डिराइव द सेम प्लेजर आउट ऑफ शुगर। तो अगर आप थोड़ी सी चॉकलेट खा रहे हैं, फिर आपको लगता है थोड़ी और खा लेती हूँ, थोड़ी और खा लेती हूँ, तो ये बढ़ता रहता है, एंड इट्स लाइक एन एडिक्शन। सो वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट। रीडिंग लेबल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। हम अगर अपने बच्चों को ये सिखा दें कि आप कोई भी पैकेज फूड ख़रीद रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इतना खा लिया तो इसमें मैंने इतना नमक खाया, इतनी चीनी खाई, इसमें इतना फैट था, और इसमें कोई और न्यूट्रिएंट था कि नहीं। सभी बच्चों को मैं बोलूँगी कि अब वो जो बिस्किट का पैकेट खोलें या कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिएं, आप प्लीज़ उस पर पीछे जाके देखें कोई मिनरल था उसमें, कोई न्यूट्रिएंट और था, कोई विटामिन था कि नहीं, कि सिर्फ एनर्जी थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस्ड फूड्स आर ओनली प्रोवाइडिंग अस दैट। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड लेबल्स। प्रोसेस्ड फूड की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स इस इनटेक को हमें कम करना पड़ेगा। जो भी प्रोसेस्ड फूड है, स्पेशली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, ये एक फैक्ट्री में बना है। अगर मैं कहूँ कि मैं एक ऑरेंज कैंडी खाई या ऑरेंज फ्लेवर्ड ड्रिंक पिया, तो उसमें कोई ऑरेंज नहीं है, कलर है ऑरेंज, फ्लेवर है ऑरेंज जो कि सिंथेटिक है, उसमें प्रेजर्वेटिव्स हैं। दीज फूड्स आर एक्चुअली नथिंग इज़ फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं उनसे डिराइव करके फैक्ट्री में बने हैं ये फूड्स, और इसलिए न्यूट्रिटिवली ये बहुत पुअर हैं, और हमें ये बताना अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि ये हाइपर पैलेटेबल है। ये जो टैगलाइन आती है ना कि नो वन कैन ईट जस्ट वन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इतने स्वाद होते हैं, इतने चीप होते हैं, इतने छोटे छोटे पैकेट्स में मिलते हैं, तो मन करता है खाने का। और आप अगर कोई भी पैकेट खोल लें, आपका मन करता रहेगा जब तक ख़त्म नहीं हो मैं पैकेट खाती रहूँ या खाता रहूँ। सो रिमूव द प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम योर डाइट। इनफैक्ट पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लाएं ही नहीं घर में, होगा नहीं तो खाएंगे नहीं, इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, वी ऑल्सो स्पोक अबाउट सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ी देर बाद उठें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें,
मूवमेंट ब्रेक्स लेते रहें और आउटडोर प्ले में ज़रूर इंडल्ज करें। इनफैक्ट गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 5 से 17 साल के जो बच्चे हैं इनको रोज़ एटलीस्ट 1 घंटा कुछ ना कुछ खेलना चाहिए, कोई भी स्पोर्ट जो आपको पसंद है, और कुछ नहीं तो वॉक करने चले जाएं। क्योंकि डेटा ये कहता है कि 3/4 ऑफ आवर स्कूल चिल्ड्रन आर सेडेंट्री, वो ज़्यादा टाइम बैठने में बिताते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, वेट कंट्रोल होगा, डिज़ीज़ से फ्रीडम मिलेगी एंड यू विल फील हैप्पी। फिज़िकल एक्टिविटी रिलीजेज़ एंडोर्फिन्स बोलते हैं जिसको हम, अपने ब्रेन से एक ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जिससे हम खुश भी बहुत रहते हैं। सो मेंटल हेल्थ के लिए भी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं तो आप फिट रहेंगे और ओवरवेट नहीं होंगे। हियर इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं मतलब बच्चों को ये भी बोलना चाहूँगी कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि यस वेट पे फोकस करें, फिट रहें, बट ओवरली कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल BMI एक बहुत बड़ा रेंज है, आप उसी में रहिए, ज़्यादा पतला होने की ज़रूरत नहीं है, फिज़िकली कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप डाइट में, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे, आप फिट हो जाएंगे। हाइड्रेशन मैटर्स, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि आपको पानी पीना है और इससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हम क्लास में अलर्ट रहेंगे, फिज़िकल परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, मूड भी अच्छा रहेगा। और पानी का मतलब पानी, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, छाछ, लस्सी, जो भी आपको पसंद है, बट प्लीज़ सॉफ्ट ड्रिंक्स मत पीजिए, एनर्जी ड्रिंक्स मत पीजिए, इनमें कुछ भी नहीं है सिवाय चीनी के। एंड लास्टली रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा अनवाइंड कीजिए। अगर कोई हॉबी है, पेंटिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है, स्विंग पसंद है, स्टिचिंग पसंद है, कुछ भी पसंद है वो कीजिए। कोई पेट्स के साथ खेलने चाहिए, डांस कर लीजिए, गाना गा लीजिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए, इतनी स्ट्रेस मत लीजिए अपने बच्चों को, मैं ये कहना चाहूँगी। यहाँ पर अगर एक वीडियो हम चला लें तो जो हम बात कर रहे हैं कि खाने में तेल, चीनी और सॉल्ट कैसे कम कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग। आज आपकी जिंदगी में कौन जीत रहा है, दिल या दिमाग? अच्छा, मजे की बात यह है कि दिल और दिमाग की इस कुश्ती की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर दिमाग चाहे तो ऐसे ऐसे सिंपल तरीके निकाल सकता है जिससे दिल भी खुश और तंदुरुस्ती भी बरकरार। अगर रोज के खाने में तेल का इस्तेमाल कम करना है तो जितना तेल अभी आप डालते हैं उससे धीरे धीरे कम कीजिए, और फिर कुछ दिनों बाद और थोड़ा कम। और अगर नमक कम करना है तो भी यही, खाना पकाते समय नमक की मात्रा आप धीरे धीरे कम करते जाइए। और ऊपर से सैलेड, दही या फल पे नमक मत छिड़किए। चाय में चीनी लेते हैं, यानी कोई नहीं, लीजिए लीजिए, बस आधा चम्मच कम कर दीजिए, और कुछ दिन बाद समझ गया ना, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। स्टार्ट रिड्यूसिंग योर इनटेक ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड फैट फ्रॉम टुडे। दैट्स राइट। ये बहुत बढ़िया कैंपेन एक चलाई थी FSSAI ने, जिसमें बोला गया था आज से थोड़ा कम। तो अगर हम बोल रहे हैं कि चीनी कम करो, नमक कम करो, तेल कम करो, तो एकदम से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पैलेट को आदत पड़ गई है इतना ज़्यादा मीठा खाने की। सो यस, आज से थोड़ा कम। अगर आप 2 चम्मच चीनी खाते हैं, डालते हैं अपनी चाय में, कॉफ़ी में, दूध में, तो उसको 1.5 चम्मच कीजिए, अगले हफ्ते 1 कर दीजिए, और हो सकता है तो ख़त्म कर दीजिए धीरे धीरे। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिल्क में अपनी शुगर है। कमिंग टू तन्वी, आपने सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था, सेकंड पार्ट वो था कि स्कूल कैसे हेल्प कर सकता है फॉर प्रिवेंटिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। सो आई थिंक टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड टीचर्स आर वेरी वाइज। वो एकदम से बच्चे को देख के पहचान लेती हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इन केस अगर टीचर्स कुछ ऑब्ज़र्व करती हैं क्लासरूम में कि बच्चे फटीग्ड हैं, ब्रेथलेस हैं, उनको बार बार नींद आ रही है, अलर्ट नहीं है, अटेंटिव नहीं है, वेट गेन हो रहा है किसी बच्चे का, कुछ बुलिंग के शिकार हैं बिकॉज ऑफ द वेट गेन, इमोशनली विड्रॉन हैं, सो मे बी द टीचर्स कैन ब्रिंग दिस टू हाईलाइट इन टू द काउंसलर, या काउंसलर नहीं है तो पेरेंट्स से बात कीजिए। सिंगल आउट मत कीजिए ऑफ कोर्स बच्चे को क्लासरूम में, बट बात कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। And second most important thing is food environment in the school. So school food environment is very very important. सर ने बताया कि environment हमारे को communicable diseases
से बचाता है अगर इन्वायरमेंट सैनिटाइज्ड है। सिमिलरली जो फूड इन्वायरमेंट है, कैंटीन में क्या मिल रहा है, बच्चे क्या खा रहे हैं, स्कूल के बाहर क्या मिल रहा है। हमने एक स्टडी करी थी जिसमें कैंटीन में तो ठीक खाना था, बट बच्चे इमीडिएटली उनको गेट भी खोलने की ज़रूरत नहीं थी, बाहर हाथ निकाल के वो कुछ चिप्स या कुछ नमकीन भुजिया कुछ लेते थे लंच में जाकर। सो वो सब देखना आई थिंक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। हम हर सितंबर पोषण माह सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जाते हैं, तो स्कूल शुड इनिशिएट दीज एजुकेशनल कैंपेन्स दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। हर साल कोई ना कोई थीम होता है और उस थीम के ऊपर कुछ डिस्कशन की जाती है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में है, न्यूट्रिशन एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं और उसको ही आप डेली लाइफ में वीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर को कम करने के तरीके क्या हैं, नमक कैसे कम किया जा सकता है डाइट में, वो सब टीचर्स बता सकती हैं और बच्चे ये इन्फॉर्मेशन घर लेकर जाएंगे और घर में भी सबको बेनिफिट होगा। फिज़िकल एक्टिविटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड देन इट्स इम्पॉर्टेंट टू इन्वॉल्व पेरेंट्स, क्योंकि घर पे बच्चा क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा, सो रहा है कि नहीं ठीक टाइम पे, किसी बात से स्ट्रेस्ड है कि नहीं, तो पेरेंट टीचर मीटिंग में अगर कभी डिस्कशन हो सकती है तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी रिसेंटली मैं एक स्कूल में गई थी दिल्ली में ही, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया किचन गार्डन बनाया गया था एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर भी एक ये पोषण माह का एक थीम था हेल्दी न्यूट्रिशियस किचन गार्डन्स। तो अगर वो कुछ ऐसा प्रमोट हो सके, उसमें बच्चे डिफरेंट क्लासेस के उस स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे, सब्ज़ी उगाते थे और वो जो प्रोड्यूस होता था वो बच्चे अपने घर लेके जाते थे। सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज। इट वाज जस्ट गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि सब्जियां कहाँ से आती हैं। बच्चों को ये भी नहीं पता कि कौन सी सब्ज़ी कहाँ से आती है और इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो ऑल दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस आर इम्पॉर्टेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो डिजीज़ेज़ हैं इनको हम बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत बड़ा रोल है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन का। Thank you. Wonderful. Thank you so much, ma'am, for letting us know कि हम easily incommunicable and non-communicable दोनों ही diseases को prevent कर सकते हैं, but we have to take certain measures. आपने एक एग्जाम्पल दिया एक स्कूल का जहाँ आप गए थे, उन्होंने हेल्दी किचन बनाया है। और अगर हम मैम एक हेल्दी किचन की बात करें तो क्या आपको लगता है प्राइवेट स्कूल्स या सबको ये इनिशिएटिव अडेप्ट करना चाहिए, और अगर अडेप्ट करें तो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इट, हु शुड टेक दैट फर्स्ट स्टेप? दैट्स राइट। सो एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम आती है स्पेस की। व्हेन वी से किचन गार्डन्स, तो इनफैक्ट अब तो ये भी बोलते हैं कि किचन नहीं है तो टेरेस गार्डन कर लो थोड़े से पॉट्स में, और कुछ नहीं तो पुदीना और धनिया ही उगा लो। इनिशिएटिव की बात है कि स्कूल को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बट इस पर्टिकुलर स्कूल जिसकी मैंने बात करी वो एक CSR इनिशिएटिव था। सो इस वजह से भी मुझे लगता है कि कहीं से भी थोड़ी सी फंडिंग आ जाती है तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्कूल्स। स्पेशली अगर हम सिटी से बाहर के स्कूल्स की बात करें तो हो सकता है वहाँ पर स्पेस है, और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके अगर कुछ किचन गार्डन्स बनाई जा सकती हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करके, थोड़ी उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, बच्चे इन्जॉय करते हैं, उनको पता चलता है कि सीजनल वेजिटेबल्स क्या हैं। क्योंकि ये प्रमोट करना कि जो सीजनल है, जो लोकल है, वो इवन इनएक्सपेंसिव है और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव खाएंगे खाना तभी आप न्यूट्रिशियस हो पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये मैसेज जाएगा। Okay, ma'am, you mentioned that creating a healthy school environment में there was one of the points for mental health support. Yes. So, do all the schools have counselors or psychologists in their schools, and is it mandatory to have them? As far as I know, it is mandatory, but somehow I don't think all of the schools have it. Most schools have it, but अगर नहीं भी हैं, but still if they can refer it to somebody else who's a counselor, और जैसे साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, उन टीचर्स को रेफ़र कर दें। क्योंकि कई बार ऐसे लगता है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं एंड जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मे बी
अगर किसी काउंसलर से बात करके या किसी टीचर से, इवन टीचर्स आई फील दे कैन बी वेरी गुड मेंटर्स, क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस है, समटाइम्स दैट ऑल्सो हेल्प्स. तो अगर काउंसलर नहीं है तो आई थिंक टीचर्स कैन देमसेल्व्स बी वेरी गुड काउंसलर्स. समटाइम्स बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर पाते हैं, वो किसी बात से, यू नो, वट एवर द प्रॉब्लम इज, द कम्युनिकेशन चैनल्स आर क्लोज्ड, बट वो कम्युनिकेशन ओपन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. काउंसलर्स हैं वेरी गुड, प्लीज़ रेफर देम. नहीं है तो प्लीज़ counsel them yourselves. Okay, so there's a huge responsibility on teachers and the entire school administration as well. That's it. Okay, sir, you mentioned about safe drinking habits, and you mentioned that one has to boil the water to be safe. But in our homes, we see that we have water purifiers. Are they safe enough? Yes, a good serviced water purifier is safe enough. Okay. But you have to clean the filter, get it serviced at the regular interval. Okay. And you also mentioned about sanitation habits and everything, but in the school there are all types of children, and is it the teachers or whose responsibility is it to teach children about basic civic sense, that you have eaten this and you have to throw this into the dustbin and not just litter it That's around? so important. So yes. how do they do that? It's for the whole society is That's right. responsible. Yeah. I can't pinpoint one person. I think parents, teachers, anybody who is guiding the child, it's the responsibility to impart proper civic sense. Wonderful. Thank you so much, sir and ma'am, for being with us in this conversation, for informing us about certain facts, certain myths, and for even telling parents and teachers what all can they do to keep their child healthy and safe. Thank you once again. Thank you Thank so you. much. Namaste. Thank you to all our viewers for being with us. I really hope that you enjoyed this conversation. It was a very basic conversation. There was no technical points in it, but basic things that I think we already know, but we don't adapt them. We don't make it a part of our everyday life, but we should. So I really hope that you will keep in mind these points and keep your children as safe as possible. With this, we have come towards the end of our program. We were discussing the topic communicable and non-communicable diseases, prevention and healthy lifestyles. And this topic comes under the theme promoting healthy lives, preventing deficiencies, diseases and developmental delays. Before I say goodbye, let me just show you the process how you can have access to the Diksha course. That link will be updated on 31st of August. So here you can see it on your screens. I've opened the CIET NCERT's website. This is the home page. If you see here, there are certain bars. If you click on activities, you will see that in the middle there is an option of live inclusive classroom. Please click on it. Once you do, scroll it a little further and you will see that these are the schedules of our teaching learning interventions for inclusive classroom sessions, whose timings are 12 to 12:30, and for 2 weeks the entire schedule has been updated. But here comes the ongoing activity, which is promoting healthy lives, preventing deficiencies, diseases and developmental delays. If you click on it, you will get each and every information regarding this 5-day live interactive series. Why are we doing it? Who is organizing it? What are its objectives? What are we going to learn throughout the program? Who all can participate? Let me please highlight, this is for everyone and this is absolutely free of cost. You do not have to pay a single penny to watch these programs. And this is the schedule from day 1 to day 5. And here comes the process how you can participate. Either you can be a part of our PM eVidya channel number 31 and even our NCERT official and NCERT events YouTube channels. How you are going to get the certificate? Either you can download the Diksha app or you can operate it on the desktop itself. So you can register yourself and complete your profile
If you have already registered, you can skip it. You can access the course on your mobile or desktop and then enroll yourself in the course. The link will be given to you. I'm mentioning again 31st of August 2026. There will be 5 modules of the course. You have to finish them all. Then the final assessment will be given. If you score 70% and above, you will be eligible for the certificate, and you can download the certificate easily on your Diksha profile itself. If you have questions, queries, raise them on a designated email ID, which is dai.ie@ciet.nic.in. Thank you so much. I really hope that you have a great day ahead. But tomorrow at sharp 12:45, we are going to come back again and we'll discuss another topic, and that's going to be safety and health, equitable and inclusive schools. Please be here and participate and raise your questions. Let me please thank our sign language interpreters Rahul and Anushka for being with us throughout the program. And before leaving, let me just show you the glimpse of the schedule that we have for the entire day. You can watch it on your screens. The upcoming next program is going to be for 7th class, and from 2 to 2:30 you can watch this program of science. The topic of discussion would be adolescence, a stage of growth and change, part 2. Thank you once again, and I'm Tanvi Khurana, and now I really hope that you have a great day ahead. You'll keep on watching our programs, and I'll take a leave of you. Thank you. Namaskar.